Hello. So I welcome all of you again in the class of the financial management. Friends, let's just discuss what we had started in the last lecture. We had started solving the question of time value of money from the very basics. We were there into the future value of single cash flow, and there was one more question which was pending to be done in this future value of single cash flow. Now, sir, what do we mean by the single cash flow? Okay, let's come over there. Sharing my screen with you, and here we are. So, sir, single cash flow में you are making the cash inflow and the outflow only for one point of time during the entire time period. So, say, sir, you are investing 1 lakh rupees right now. Then what will be your value after, say, 5 years? So, there is a cash inflow and outflow taking place only for one point of time in a lump sum. Meanwhile, during this time period, no other transactions are taking place, right? Similarly, so if I take a loan of 1 lakh rupees, then how much loan repayment I will have to make after say 5 years, again a future value. That was again a question of single cash flow stream. बीच बीच में कटके कुछ नहीं हो रहे हैं, इसीलिए तो भैया इसे सिंगल कैश फ्लो स्ट्रीम कहा जाता है. So there was one more question pending to be done from our side. I am copying that question and pasting it down. We will start solving that question in this session. So here we are. Let's start reading the question. As I have already stated to all of you, once the module will be over, my friends, entire classwork will be sent to you along with the Excel workings I am doing over here. Moreover, few practice questions will also be shared to you in the due course. तो अभी आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन मिले उसको कॉपी करो या तो फिर उसको स्नैप कर लो और फिर उसको स्टार्ट करो सॉल्व करना. Mrs. Melinda Gates wants to invest 10 lakhs rupees from her alimony with 12% return expectations for 5 years, compounded on a continuous basis. सर मंथली बेसिस सुना था, ईयरली बेसिस सुना था, 6 मंथली बेसिस सुना था, ये कंटिन्यूअस बेसिस क्या होता है? तो मेलिंडा गेट्स आके मेरे को बोले कि रौनक भैया आपको है ना एक काम करना है. बोला बताइए बताइए मैडम, मैं तो हूँ रेडी हूँ. तो बोला यार 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 12% के रिटर्न से 5 साल के लिए. तो बोला मैडम आप तो इतने बड़े लोग हो, 10 लाख रुपए सिर्फ. तो बोले मैं सिर्फ तुम्हारा नॉलेज चेक कर रही हूँ अभी. इफ यू आर राइट विथ योर नॉलेज तो फिर मैं तुम्हें बड़े बड़े काम बड़े बड़े टास्क दूंगी. मैं बोला चलो ठीक है मैडम करते हैं. What will be the future value after 5 years? Now what is the continuous compounding? Can someone tell me? तो मैं तो चक्कर में आ गया. मैं बोला रुको, मैं है ना बीबी यूनस वाले बच्चों के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि ये continuous compounding क्या होता है. What do you mean by this? Can someone tell me? ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग क्या होता है? ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग क्या होता है? चलो बोलो. ये करके बताओ. इंक्रीजिंग रेट नहीं, 12% का ही रेट है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं करना है भैया. और कोई आंसर? 10 lakhs पे जो इंटरेस्ट लगेगा 12%, तो उसमें से जितना अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम 12% ऐसे लगाते जाएंगे. वो तो वो कंपाउंडिंग में वही होता है, वही तो कर रहे थे अपन कंपाउंडिंग. या तो फिर वो लोग ईयरली बोलते, या तो फिर 6 मंथली बोलते, या तो फिर मंथली बोलते. चलो अगर मंथली भी होता तो क्या होता? अगर 12% तुम्हें पर एनम मिलते हैं तो मंथली कंपाउंडिंग का क्वेश्चन तुम कैसे सॉल्व करोगे? 100 रुपए है, इन्वेस्ट किए हैं, तो पहला काम हम ये करते थे कि 12% को डिवाइड करते थे नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर, व्हिच इज 12. Sir, it means that we have to count for each and every month. So there will be a 1% interest on a monthly basis. So you get 101 at the month.
नाउ द सो ये तो Sir, मंथली your voice कंपाउंडिंग is हो गई, glitching ये in तो between. मंथली भी नहीं है, तो क्या हो सकता है? ये Sorry, your voice is glitching in between. ये कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, किसी को यही नहीं मालूम। अब ये Can I? कंटिन्यूअस से हो रहा है या कि चलो मैं मंथ के आगे आऊँ डेज में। यस प्लीज, व्हाई नॉट प्लीज। It means that we have to calculate on the basis of monthly, quarterly, and semi-quarterly. तो फिर मंथली बोला होता, सेमी क्वार्टरली नहीं बोला सर, होता। तीनों का करना है हमें, सिर्फ एक का नहीं करना है। हमें मंथली का भी फाइंड करना है, उसके बाद क्वार्टरली का भी करना है, और उसके बाद सेमी क्वार्टरली का भी करना है। Sir, may I? सेमी क्वार्टरली, यस प्लीज। It means on day-to-day basis. We are calculating on a daily basis. ओके, डेली बेसिस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि डेली बेसिस पे करना है। तो चलो कोई कोई लोग ऐसा आए, वो आके बोले कि सर डेली से भी नीचे होते हैं, नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, ठीक है, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। तो लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ डेज, number of hours in a year, and that will be taken into account for doing this, you know. So when we were finding the future value, you know, it was the formula PV multiplied by 1 plus R raised to N. R was divided by number of periods in a year, that was called as M, and N was multiplied by the period of number of periods in a year. So this is what we used to do. अगर महीने हैं तो तुम 12 करोगे, R will be divided by 12 and N will be multiplied by 12. अगर quarters है, then R will be divided by 4 and M will be multiplied by 4. But sir, अगर continuous है तो क्या है? तो continuous का मतलब daily भी नहीं है, तो फिर वो daily बोलते हैं। तो R would have been divided by 365 and N would have been multiplied by 365. डेली से नीचे भी टाइम होराइजन आते हैं ना, आरली भी होता है। कोई कोई आके बोला कि सर आर से भी नीचे है ना मिनट्स होते हैं। कोई उससे भी पर्टिकुलर आके बोला कि सर मिनट से भी नीचे है ना सेकंड्स होते, तो आपको नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने हैं। फिर कोई ऐसे आइंस्टाइन की औलाद आई और हमें आके बताने लगी, अरे सर सेकंड्स नहीं होता, उससे भी नीचे है ना अपने माइक्रो सेकंड्स और नैनो सेकंड्स होते हैं, आपको क्या मालूम। तो ये तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। किधर नैनो सेकंड्स को तुम कैलकुलेट करोगे तो फिर ये बहुत आगे चला जाएगा। तो क्या करे क्या करे। रौनक सर बहुत बुरी तरीके से फंसे इधर। मैं बोला रुको मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने फिर से फॉर्मूला लिखा, एफ ई इक्वल्स टू पी वी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर रेस टू एन। मैं बोला चलो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो पी वी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एम एंड एन इज मल्टीप्लाइड बाई एम। अब m का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर which is continuous, infinite in nature. Even seconds can be nanoseconds, even there may be a fractions of nanoseconds, I don't know. तो continuous time frame का मतलब क्या होता है? Infinite हो गया ये। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Sir, your voice is glitching. बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ? टी मतलब टाइम पीरियड। तो मैंने Yes, sir. पी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एम। Sir, your voice is glitching so much. अपन डिराइव कर ले स्लोली स्लोली स्टेडली धीरे प्लस आर डिवाइडेड बाय एम। तो ऊपर है ना, थोड़ा सा Sir, चेंज कर दे। मैं क्या करता हूँ? यस प्लीज। sir, we got nothing because your voice was glitching. Your voice was not audible at all. आपने जो भी किया कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अरे रियली सॉरी। चलो मैं है ना कुछ बालकनी में चला जाता हूँ, मैडम रुको 1 मिनट।
चलो सर आगे बातें में धूप में बैठे हुए इस ऑडियो। Yes, sir. ओके चलो थैंक यू, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, अपना जो फॉर्मूला है बेटा उसको सिर्फ मॉडिफाई कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस का कोई हमें मतलब मालूम नहीं है। अब कंटिन्यूअस तो कितना भी आगे कंटिन्यूअस हो सकता है। इट मे बी नंबर ऑफ मंथ्स, इट मे बी नंबर ऑफ आवर्स, इट मे बी नंबर ऑफ सेकंड्स, इट मे बी नंबर ऑफ माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स। तो इट कैन गो कंटिन्यूअसली। we don't know the exact period for continuous in nature. Now I'm just making few modifications in the formula. So Fv equals to Pv multiplied by R raised to n. Now R को हम डिवाइड करते हैं m से। m stands for the number of periods in a year and n को हम मल्टीप्लाइड करते हैं number of periods in a year. That's what we used to do in the last lecture, if you can recall it a bit. Now n को मैंने है ना t से डिनोट कर दिया है। t stands for the time horizon, time period. m लिखो, n लिखो कि t लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने t इसलिए लिखा क्योंकि ज्यादातर ये वाली जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज होती है वहां पे t का उपयोग ज्यादा होता है। अब है ना मैं एक और थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। t को मल्टीप्लाई करता हूं r से और m को डिवाइड करता हूं अगेन r से। तो न्यूमरेटर में r है, डिनोमिनेटर में r है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सम पीपल विल बी लाइक सर क्यों कर रहे हो, सीधा बता दो। सीधा इसलिए नहीं बताना है क्योंकि हमें फॉर्मूला डिराइव करना है बेटा। एग्जामिनेशन में डेरिवेशन नहीं आने वाला है, लेकिन लर्निंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इक्वल्स टू PV multiplied by 1 plus R divided by M, then it would be RT here multiplied by M divided by R. अब इसका है ना थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देते हैं। So PV multiplied by 1 plus R divided by M. So I can also write it M divided by R multiplied by RT. चलो थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। PV multiplied by 1 plus, बेटा ये जो R है उसको तुम डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो M के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो it would be 1 over there in a numerator divided by M divided by R, and that will be raised to M divided by R multiplied by RT. अब let's assume that M divided by R as X. तो अपन x को वहां पे रिप्लेस करते हैं। PV multiplied by 1 plus 1 divided by x raised to x multiplied by RT. Let's consider this as the infinite function. Now here when you are stuck like this, now x can go as many number of seconds, number of microseconds, so it will be pretty huge, you know, and even the power will be pretty huge. अब ये s को कैसे सोल्व किया जाए? So mathematically this infinity can be solved by using the concept of limit and by using the factorials. Some people will be like sir ये factorial क्या है, लिमिट क्या है, कुछ नहीं मालूम है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। Sir, हाँ sir, can you explain the second last step again? Above this x step. कुछ नहीं किया, इन दोनों को ऑर्डर को चेंज किया। देखो अच्छा उसके बाद वाला, तो उसके बाद वाला जो था ना, तो R था, वो R को अपन लेके गए M के नीचे, तो R की जगह पे 1 आ गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके तो M के नीचे लेके गए, तुम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के नीचे लेके जाओगे तो वो थर्ड लेवल का डिनोमिनेटर बन जाएगा ना, डिनोमिनेटर, और ऊपर उसकी जगह पे 1 आ गया। तो नाउ दिस फंक्शन इज द इनफाइनाइट फंक्शन, इसका कोई एंड ही नहीं है। इसको कौन सी तरीके से सॉल्व करें? तो भैया इसको है ना मैथमेटिकली फैक्टोरियल से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? तो सर अगर आपने 1 लिया प्लस उसके बाद में 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल किया प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल किया, नाउ द डिनोमिनेशन इज स्लोली एंड स्टेडीली इंक्रीजिंग टू द इनफाइनाइट। देन 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, देन 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, देन 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और ये भी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। So let's find up to some number of factorials, you know. So 1 plus factorial का मतलब क्या होता है कि उसके पीछे वाले जितने नंबर होते हैं ना उसका मल्टीप्लिकेशन करना। तो 1 के पीछे तो 1 ही है,
तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 1. अब 2 के पीछे कौन है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो इट विल बी 2. 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6. फिर 4 फैक्टोरियल आया, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो इट विल बी 24. तो 5 है वो तो और भी आगे जाएगा, तो ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा. अब एक चीज ध्यान में रखो कि ये तुम 6 फैक्टोरियल करोगे, 7 फैक्टोरियल करोगे, 8 फैक्टोरियल करोगे, फिर डिनोमिनेटर विल बी टू बिग, यू नो, मैथमेटिकली. एंड इफ न्यूमरेटर विल बी 1, then the marginal addition to this will be quite small, will be negligible in fact. तो धीरे 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 ये नंबर अप्रोच करता है 2.718, because after some additions the marginal additions will be too small, too negligible, that it won't really make any difference. It will ultimately reach to approach to 2.718. Now this is nothing but the exponential factor. जैसे पाई का वैल्यू डिराइव होता है 22/7 3.14, वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिराइव होता है वैल्यू इस तरीके से. बिकॉज वी डोंट नो द नंबर ऑफ पीरियड्स, द नंबर ऑफ पीरियड्स आर कंटिन्यूअसली एवर इंक्रीजिंग. टाइम पीरियड ऑफ 5 years इज नो वन टू अस, टोटल टाइम पीरियड, लेकिन उसके कटके कितने करने वो मालूम नहीं. कटके तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं. So that becomes 2.718, which is nothing but E. Now let me put E over there in the formula. So it becomes PV multiplied by E raised to RT, because this entire function was assumed to be the infinite function. So that becomes a new formula, FV equals to PV multiplied by E raised to RT. That's the future value formula of single cash flow when there is a continuous compounding given to you. सर नहीं समझ में आया तो बेटा रट्टो बाई कर लो, रट्टो फाई. अपना नया फॉर्मूला है, जब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग आता है तब ई आ जाता है पिक्चर में, बस. और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. डेरिवेशन तो इसलिए करवाया क्योंकि हम फंडामेंटली भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. चलो जाते हैं क्वेश्चन में. अब मलिंडा मैडम बोले कि भैया 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है. मैं बोला चलो ठीक है, तो पीवी विल बी 10 lakhs. Then the value of E will be 2.718 raised to RT. RT will be the rate of return. Our expected rate of return is 12%, so it will be 0.12. T stands for the time period, which is going to be 5 years in total. So equals to 10 lakhs. Multiplied by 2.718 raised to 0.60. अब raised to 0.60 आया, फिर से फंसे. रौनक सर क्यों ऐसा करते हो आप, ऐसे क्वेश्चंस क्यों बनाते हो? बेटा सीखना तो पड़ेगा. अब हम खुद स्टक होते हैं तो मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी ब्रेकअप हो गया, मम्मी ये वो बेवफा हो गया, मम्मी मेरे साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, मम्मी मैं ये फंस गया, ये हो गया. So when we are mathematically stuck, we go to mother of mathematics, and mother of mathematics is logarithms. अब बोलोगे कि सर logarithm सिखाओ. बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. logarithm ऐसी कोई rocket science नहीं है, समझ में आ जाने वाली बात है. So let x be this value 2.718 raised to 0.6. Now logarithm needs to be taken on both the sides because we follow LHS RHS. So log of x equals to, the first property of logarithm is that whatever is there in a power will come into multiplication. Please put this in the back of your mind. So 0.6 will come over here in the multiplication, and there will be a log of 2.718. Whatever is there in a power will come into multiplication. First rule when you take the log of any value. चलो आगे बढ़ते हैं. सर लॉग टेबल आपने शेयर किया था? हाँ सर शेयर किया था, आई गेस 1-2 दिन पहले शेयर किया हुआ है. तो मैं अभी लॉग टेबल ओपन करता हूँ, उसमें धीरे 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 हड़ू 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 देखते हैं. धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है.
तो ये आ गया हमारा लॉग टेबल। बहुत सारी जगहों पे काम आएगा बेटा, तो आप देख ही लो। कोई कोई बोलेंगे कि सर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो बेटा कल जाके अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर डिसअलाउ हो गया तो फिर क्या करोगे? तो उससे अच्छा है कि सीख ही लो, 2 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा, log में at whatever the place the decimal is, please put this in the back of your mind that you will take the log of the first 2 digits. So 27's log you will find in the column of 1, and the main difference of 8 will be added. Let's ignore the decimal for a while right now. So you will find 27 first of all. So on 27 is found, sir, over here. 27, 27, 27. यहाँ पे मिल गया हमारा 27. Now this column starts with 0, 1, 2, 3, 4, and it will approach to 9. And then the min difference table starts with 1, 2, 3, 4, 5, 6, and it will also approach to 9. And it will start from here. Min difference will start from here. तो सर मैंने क्या बोला? 27 में 1 का कॉलम देखना है, तो 1 के कॉलम में क्या आता है? 4, 3, 3, 0. और सर मेन डिफरेंस कितने का ऐड करने का? 8 का. तो ये 8 का मेन डिफरेंस कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो मेन डिफरेंस स्टार्ट होता है इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो 8 आता है 13. चलो ध्यान से सुनना आप. Now this 13 min difference will be added in this value of 4343. तो ये 4343 में 13 को बेटा अगर ऐड करोगे तो वैल्यू आता है 4343, नहीं 4330 में 13 ऐड करोगे तो वैल्यू आता है 4343. तो 4343 में वहां पे जाके लिखता हूं. फिर पॉइंट कहां पे रखना ये सब बाद में डिस्कस करते हैं. 4343. चलो यहां तक समझ में आया? फिर से बता रहा हूं. 27 नंबर का लॉग में जाना है, उसमें 1 की वैल्यू देखनी है, तो 1 की वैल्यू आती है 4330. उसमें 8 का मिन डिफरेंस ऐड करना है, तो 8 का कॉलम मिन डिफरेंस में यहां पे आता है 13 वैल्यू. नाउ 13 वैल्यू विल बी एडेड इन 4330, सो इट विल बिकम 4343. चलो यहां तक सब कोई क्लियर है भैया? कंफर्मेशन प्लीज. यहाँ तक कोई क्लियर है? हर कोई? यस Yes, सर. sir. ओके यस चलो आगे. सर. ओके थैंक यू. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. अब पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? कोई कौन बताया? चलो बताओ. पॉइंट से पहले कितने डिजिट है लॉग की वैल्यू में? इसमें 2 सॉरी 1. हाँ, मैंने क्या पूछा? डिजिट, नंबर नहीं. ठीक है, तो डिजिट है वो 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नंबर कोई भी हो, लेकिन डिजिट 1 है भैया. तो अगर 1 है तो 1 में से 1 को लेस करोगे तो क्या आएगा? कौन बताएगा? एक में से 1 को लेस करना है तो क्या आता है? 0. 0. So my answer should start with 0.4343. Let me complete. I am yet to complete my explanation. सर यहाँ पे अगर 27.18 होता तो क्या होता? तो मेरे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला है. मैंने को पहली 2 वैल्यू देखनी है थर्ड के टेबल में और 8 का मिन डिफरेंस ऐड करना है. तो सर वो तो 4343 ही आने वाला था. ये लास्ट स्टेप Yes. समझ नहीं आया. 0.60 वाला, वो 0.4343 वाला. वो ही समझा रहा हूँ बेटा. इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि रुको 1 मिनट, मुझे मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने दो. 1 मिनट बेटा, 1 सेकंड. अब यहाँ पे अगर 27.18 होता, आई एम जस्ट आस्किंग यू द क्वेश्चन, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? बताओ बताओ बताओ. पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, डिजिट कितने हुए? 2. वेरी ट्रू. तो 2 डिजिट हुए, तो 2 में से आपको 1 लेस करना है, तो कितना आता है? 1.
तो मेरा आंसर स्टार्ट होना चाहिए 1.4343। लेट मी कंप्लीट माय एक्सप्लेनेशन, अभी भी खत्म नहीं हुआ, चलो आगे जाते हैं। अगर यहाँ पे 271.8 होता तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है बताओ? 3 वेरी नाइस। तो 3 में से अगर एक को लेस करोगे तो क्या आता है? 2 तो अपना आंसर होता है 2.4343। तो अब समझ में आया मैंने वहां पे 0 क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट से पहले कितना डिजिट था? सिर्फ एक डिजिट था, तो एक में से एक को लेस किया तो आता है 0। तो अपना आंसर शुरू होना चाहिए 0.4343। इज इट क्लियर नाउ? मे आई हैव अ कंफर्मेशन प्लीज? Yes, sir, clear. Yes. Okay, thank you. So let's multiply that with 0.60. What do we get? 0.26058. 0.26058. 0.26058. 0.058. Okay, thank you so much. So that will be a log of x. You can cross verify this in the Excel as well. In Excel there is a function called log. So equals to log, open the bracket, 2.718. What is this? 0.4343. अच्छा, फिफ्थ डिजिट आता है, वो लॉगरिथम में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन रहता है तो थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है। वो logarithm is only up to 4 digits, no, that's why it will give you 4343. If I'll put it like 27.18 and Excel will give me 1.4343. so अपना आंसर सही है, चलो अपन सही जगह पे जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते भैया। अब यहाँ पे x के साथ भी log जुड़ा हुआ है, तो log है वो वहां पे राइट लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो log का हो जाएगा एंटी log, उसको भूल नहीं जाना है। अगर भूल गए तो फिर बड़ा पछताओगे और उसमें आपका घाटा, log का कुछ नहीं जाता। सो x विल बी एंटी log ऑफ 0.26058। वैसे ही भैया जिंदगी में भी होता है, तुम नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाओ तो पॉजिटिव बन जाओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाओगे तो नेगेटिव बन जाओगे। जैसी जैसी तुम्हारी साइड वैसे तुम बन जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अब ये एंटी लॉग कैसे लेना? तो अब एंटी लॉग की रूल्स के अंदर आते हैं। डेसिमल होता है ना, उसके बाद वाले 2 डिजिट, डेसिमल के बाद वाले 2 डिजिट का ही एंटी लॉग देखना है। उससे पहले कुछ भी वैल्यू हो तो उसको क्या करो? इग्नोर मारो, उसको बोलो ओ रुक 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 भाई साहब रुक, तेरी कोई जरूरत नहीं है अभी। पॉइंट के बाद वाले डिजिट है 26, उसमें 0 का कॉलम और 5 का मिन डिफरेंस ऐड करना है, द सेम वे वी वर फाइंडिंग द लॉग। तो चलो जाते हैं अब एंटी लॉग में। तो सर 8 को क्या करेंगे? 8 को इग्नोर करेंगे, इतना अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट के लिए करने का ये। तुम ये भी कर सकती हो ना, 5 को राउंड ऑफ करके 6 कर दो और तो फिर 6 का मिन डिफरेंस ऐड करो। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि अपन तो 4 डिजिट तक ही कर पाएंगे बेटा। चलो जाते हैं आगे। तो 26.26 का लॉग, सर ऊपर तो सब लॉग है, नीचे अपन को जाना है एंटी लॉग में। तो देखो एंटी लॉग सिर्फ पॉइंट से, डेसिमल से ही शुरू होते हैं। तो अपन गए 0.26 में, इधर आ गया 0.26। अरे ओ भाई चल शुरू हो जा। तो 0.26 मिल गया, छोटा सा कर देते, थोड़ा सा छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। लैपटॉप भी लाइक 2 बजे का सेशन, इट इज ऑल्सो लाइक है आप मेरे को कुछ करना नहीं है, हैंग हो रहा है। लैपटॉप इज हाई ऑन द गांजा राइट नाउ। ओके, इन 26 you will find the value in the column of 0. So column of 0 is this 1820, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है, अपना टेबल है वो। फिर मिन डिफरेंस इधर से शुरू होता है, देखो इधर से। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 के मिन डिफरेंस है। तो मिन डिफरेंस कितने का सर? So that is of 5. So let's go over there in the min difference of 5. The min difference of 5 is this 2, क्योंकि this is 1 2 3 4 and 5। तो सर वो 2 है, वो min difference है। सर उसमें 0 का मीन डिफरेंस नहीं लेना है? नहीं बेटा, 0 का नहीं, 0 का वैल्यू देखना है। 26
पहले 2 डिजिट में गए 26, उसमें जीरो का कॉलम देखा तो जीरो का कॉलम ये है 0 1 2 3 Got 4। it, sir. Got it. ओके, तो ये जो 2 है ना, 2 मिले ना तुम्हें, उस 2 को जाके ऐड करोगे इधर 1820 में। तो सर 1820 में अगर 2 ऐड करते हैं तो वो हो जाते हैं 1822। तो अपन पहले लिख देते हैं 1822, फिर बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। चलो भाइयों, क्या किया जाए इसके साथ, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? 1822 के साथ क्या सुलूक किया जाए? सर ये यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या नंबर है? पहले मैं डिजिट की बात करता था, अब मैं नंबर की बात करता हूँ। वेरी नाइस, जीरो है, जीरो। सर पॉइंट से पहले है जीरो, लॉग के टाइम पे एक को लेस करते थे, एंटी लॉग के टाइम पे एक को ऐड करना है, तो जीरो में एक ऐड करते हो तो क्या आता है, कौन बताएगा? 1 तो लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई ऐसे बहुत बड़ा आंसर दे दिया, जीरो में एक ऐड करना मतलब कि 1 होता है। ओके, तो मेरा जो आंसर है ना, मेरा जो डेसिमल, वो एक डिजिट के बाद आना चाहिए, तो एक डिजिट है 1.822। मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुआ, मेरे को अभी बोलने दो 2 मिनट के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे अगर 1.26058 होता तो क्या करते? तो पॉइंट से पहले क्या नंबर है, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, नंबर क्या है? 1 तो एक में एक ऐड करोगे तो क्या हो गया? 2 तो तुम्हारा जो आंसर होता है ना, वो यहां से होता है, 2 डिजिट के बाद तुम्हारा डेसिमल लगता, तो 18.22 आता। अब समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, तो सर 1.822 अपना आंसर ये है। हाँ, यहाँ पे से भूल नहीं जाना। चलो उसको जाके अपना मेन आंसर में जाके लगा देते, चिपका देते बिडू लोग उधर चिपका देते, हटा 7 की गड़ा, चल बत्ती बुझा, 1.822 उधर लाके डाल देते हैं। किधर है अपना मेन आंसर? इधर रहा। सो इक्वल्स टू 10 lakhs multiplied by 1.822, so it will be 18,22,000। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर से करोगे तो और एक्यूरेट आंसर आएगा, उसमें कोई बिल्कुल भी शक की बात नहीं है, अग्री। बट लॉगरिथम से आपका थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड आंसर ही आता है, क्योंकि लॉगरिथम की वैल्यूज हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट की अवेलेबल होती है। तो सबको समझ में आया लॉग कैसे लेना है, एंटी लॉग कैसे लेना है? कंफर्मेशन प्लीज। सर ये एंटी लॉग Yes, में sir. लास्ट वाला एक्सप्लेन करो ना, 18.22 वाला आपने जो करवाया है ना, वो वाला। देखा, पॉइंट से पहले कितने नंबर है बताओ, कौन सा नंबर है? 1। अच्छा, पॉइंट से पहले 1 नंबर है, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो क्या आता है? 2। तो सर 2.1822 नहीं होगा? नहीं, मतलब होगा कि 2 डिजिट के बाद तुम्हें पॉइंट रखना है। एंटी लॉग में डिजिट लेना है, उसमें नंबर था। लॉग में और एंटी लॉग में बस यही फर्क है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझे कि नहीं? तो मेरा जो भी आंसर आया ना, उसमें 2 डिजिट आया ना, तो 2 डिजिट के बाद मेरा पॉइंट आना चाहिए भैया, बस इतना। अब समझे? यस सर। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना FV ऑफ सिंगल कैश फ्लो। नाउ लेट्स गो टू स्लोली एंड स्टेडीली annuity. You may take a snap of these questions. First of all, I will explain you the meaning of annuity and then we will move ahead. चलो इसके आपको स्नैप ले लेने हैं, और हो जाने के बाद मैं अब जाता हूं एन्यूटी के एक्सप्लेनेशन में। एन्यूटी ये क्या है सर? ये एन्यूटी क्या है? बेटा एन्यूटी में आप कट के पेमेंट करते हो, तो कैश इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो मतलब कि तूने रिसीव किया, आउटफ्लो मतलब कि तूने पे किया, बट कट के एक साथ नहीं। तो मतलब मेरे पास कोई आके बोला, भैया सर मुझे है ना 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं हर एक साल में ऑन अ ईयरली बेसिस फॉर 5 years at 10% rate of return expectation. So I said okay.
एंड ही सेड कि भैया इसका मुझे फ्यूचर वैल्यू नहीं दिखाओ। मैं बोला यार ये तो सिंगल कैश फ्लो तो है नहीं, ये तो तुम 5-5 हजार रुपए 5-5 हजार रुपए कितने साल तक इन्वेस्ट करने वाले हो? 5 साल के लिए। तो मैंने है ना क्या किया, ऐसा ड्रॉ किया, फिर उसमें कटके किए, ये पहला कटका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ये भाई साहब 5,000 रुपए पहले में इन्वेस्ट करेंगे, 5,000 रुपए दूसरे में, 5 तीसरे में, 5 चौथे में और 5 पांचवे में। तो ये हो गया एन्यूटी। इसके कंडीशंस है दो जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन ओनली इट कैन बी कॉल्ड एज एन एन्यूटी, अदरवाइज इट विल बी discontinuation of annuity. Number 1, the amount during this entire time horizon should remain same, 5,000। कल जाके तुम्हें मन हुआ कि नहीं सर मेरे को तो 6,000 लेने हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। 5,000 रुपए 5,000 रुपए मतलब 5,000 रुपए। 6,000 आता है तो उसका अलग से कैलकुलेशन होगा, वो एन्यूटी नहीं है, इतना मैं बता रहा हूं। दूसरा कंडीशन, that the time horizon between the two successive payments should be the same. It may be either a month, it may be either a year or a 6 months or a quarter or a 2 months or whatever the case it may be, or a daily basis too. There are few post office savings schemes, no, over there you do the investment on a daily basis. रोज आप कुछ ना कुछ 100 रुपए 200 रुपए पोस्ट ऑफिस में डालते हो, टीपे टीपे सरोवर भराई। And I am the firm believer of the टीपे टीपे सरोवर भराई kind of this philosophy, you know. I have seen the true huge benefits of it. किससे में से कटके पैसे निकलते हो रोज में, तो वो नड़ते भी नहीं है और एक समय पे बहुत बड़ा सेविंग्स क्रिएट हो जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता। तो सर इसे कहते हैं एन्यूटी। और रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी तुम्हारा सेम होना चाहिए ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम होराइजन विच इज 10%। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम्स होती है, नेशनल पेंशन स्कीम्स होती है, रिटायरमेंट के कुछ स्कीम्स होती है, एन्यूटीज कुछ इंश्योरेंस प्लान्स की होती है। तो उस सब कैलकुलेशंस में आपको मालूम पड़ेगा कि ये एन्यूटी के कैलकुलेशंस आपको वहां पे बहुत काम आते हैं। अब सर यहाँ पे एन्यूटी है ना, वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। तो एक एन्यूटी होती है उसे कहते हैं ऑर्डिनरी, और दूसरी होती है उसे कहते हैं एन्यूटी ड्यू। अब यार सर आप तो इतने ज्यादा लेके आते हो कॉम्प्लिकेशंस। अब ये ड्यू और एन्यूटी ऑर्डिनरी में क्या फर्क है बेटा? अगर इस पीरियड के शुरू में आपके जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज है वो अकर होते हैं, तो उसे कहते हैं ड्यू। शुरू में मतलब कि इधर ये 5,000 है ना, ये इधर अकर हुआ, तो उसे कहते हैं ड्यू। अब ड्यू में है ना आपको 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम पहले साल में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे और वो भी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ, देन यू विल गेट द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, for 3rd year, for 4th year and for 5th year too. So you will get the interest for how many years? 5 years. तुम्हारे जो दूसरे 5,000 रुपए है उसमें तुम्हें इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा? 4 साल का मिलेगा। तीसरे 5,000 के ऊपर 3 साल का, चौथे के ऊपर 2 साल का, और पांचवे 5,000 रुपए के ऊपर तुम्हें सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो एंड वाले जो 5,000 रुपए है ना उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पीरियड के एकदम शुरू में तुमने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कि पूरा पीरियड अभी तक जाना बाकी है। और जो एन्यूटी ऑर्डिनरी होता है उसमें तुम एट द एंड ऑफ द पीरियड कैश फ्लोज और आउटफ्लोज को अकर करते। तो मतलब ये हो गया, समझने की कोशिश करो। 5 कटके फिर से, लेकिन ये जो पहले 5,000 रुपए है ना वो यहां पे दिए आपने, इधर दिए, इधर भैया इधर। मतलब पीरियड के शुरू में बीकेटी क्या मिला आपको? बीकेटी, बाबा जी का ठुल्लू। तो इधर कुछ नहीं, पीरियड के एंड में 5,000 रुपए इधर से डाले, तो ऑब्वियसली कोई आपकी सेवा करने के लिए तो नहीं आए हैं। आपको पहले पीरियड का इंटरेस्ट वो क्यों देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो आपको इंटरेस्ट कितने पीरियड का मिलेगा? तो आपको है ना पहले ईयर के एंड में जो आपने 5,000 रुपए डाले हैं उसके लिए आपको सिर्फ 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर दूसरे वाले जो 5,000 है उसमें
3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे वाले जो 5,000 है उसमें 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, बिकॉज थर्ड 5,000 इज द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, सो यू विल गेट द इंटरेस्ट ओनली फॉर द फोर्थ एंड द फिफ्थ ईयर। वैसे ही फोर्थ वाले 5,000 है उसमें सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और पांचवे वाले 5,000 है उसमें तुम्हें क्या मिलेगा, BKT, मतलब कि बाबा जी का ठुल्लू। उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो तुम पीरियड के एंड में इन्वेस्ट करते हो और बता रहे हो कि यहाँ पे मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या है, तो उधर का ही फ्यूचर वैल्यू चाहिए, उधर ही इन्वेस्ट कर रहे हो उसी टाइम पे, तो उसका तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है नहीं। तो मतलब हर एक पीरियड में आपको एक एक पीरियड का इंटरेस्ट कम मिलता है, तो इसे कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी। अच्छा, नहीं समझ में आया, चलो एकदम सिंपल। अच्छा, एकदम सिंपल। पीरियड के अगर शुरू में पैसे तुम इन्वेस्ट करती हो या तो फिर रिसीव करती हो, तो वो वाला हो गया ड्यू, पीरियड के शुरू में। और पीरियड के अगर एंड में तुम रिसीव करती हो या तो फिर पे करती हो, तो वो वाला हो गया ऑर्डिनरी। ये समझ में आया? यस सर। चलो, तुम्हारा पीरियड है साल, तो साल के शुरू में अगर तू 5,000 डालेगी और बोलेगी कि सर 5 साल का फ्यूचर वैल्यू बताओ, तो मैं बताऊंगा कि बेटा तुम्हें है ना एन्युटी ड्यू वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्यों? क्योंकि तू हर साल के शुरू में पैसा इन्वेस्ट करती है। लेकिन तू बोलेगी कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा, मैं है ना साल के एंड में पैसा करूंगी, तो मैं बोला कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें ऑर्डिनरी एन्युटी का कैलकुलेशन करके दूंगा। ये टाइम होराइजन है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं मींस वो हुआ एन्युटी, एंड अगर हम लास्ट ईयर करते हैं तो फिर हुआ कि ऑर्डिनरी, राइट? ए बेटा, लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, पीरियड के एंड और पीरियड के बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारे 5 साल है, ठीक है, 5 साल में तुमने 5-5 हजार रुपए हर साल को इन्वेस्ट करना है, हर साल में 5-5 हजार रुपए। तो ये 5,000 रुपए तू अगर पीरियड के शुरू में इन्वेस्ट करेगी, एकदम शुरू में, बिगिनिंग में, तो उसे तुम ड्यू कहोगी, एन्युटी ड्यू। क्या बताओगी? एन्युटी ड्यू। लेकिन वही 5,000 रुपए तुम ईयर के एंड में इन्वेस्ट करोगी, तो उसे तुम कहोगी ऑर्डिनरी एन्युटी। ये यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, बट इट मे बी लोन और मे बी एनी अदर सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। पैसा मिल भी सकता है, पैसा दे भी सकते हैं अपन। या सर, क्लियर। इज इट क्लियर नाउ? यस सर, क्लियर। तो डिफरेंस बेटा सिर्फ इतना ही है कि तुम्हारा जो एन्युटी ड्यू है ना, उसमें हर एक ट्रांजेक्शन में तुम्हें 1-1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, क्योंकि पहले साल के शुरू में तुम कुछ पैसा इन्वेस्ट करती हो 5,000 रुपए, तो उसमें तुम्हें 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। एक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। मैं फ्यूचर वैल्यू कौन सी फाइंड करना चाहता हूं? 5 साल के बाद वाले। फिर तुम दूसरे साल में कुछ इन्वेस्ट करोगी बिगिनिंग में, तो तुम्हें 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये कौन सा वाला केस है? एन्युटी ड्यू का केस है। लेकिन ऑर्डिनरी वाले में तुम्हें हर एक पीरियड में, हर एक ट्रांजेक्शन में 1-1 पीरियड का इंटरेस्ट कम मिलेगा, क्योंकि तुम 5,000 रुपए पीरियड के एंड में सबमिट करवाती हो, पहले साल के एंड में, तो पहले साल का तो इंटरेस्ट तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो तुम्हें कितना मिलेगा? सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का, तो तुम्हें 4 साल का मिलेगा इंटरेस्ट। वैसे ही सेकंड वाले जो 5,000 रुपए है ना, उसमें तुम्हें कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 3 का। जो थर्ड वाले 5,000 रुपए है, उसमें सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। जो फोर्थ ईयर में तुम 5,000 रुपए डालती हो, फोर्थ ईयर के एंड में डालती हो, तो उसमें सिर्फ तुम्हें 5वें साल का ही मिलेगा, क्योंकि फोर्थ ईयर तो ऑलरेडी चला चुका है। और जो 5वां वाला है 5,000 रुपए, उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? BKT। BKT स्टैंड्स फॉर द बाबा जी का ठुल्लू। Okay, so sir, how does the formula of the future value looks like? You are not supposed to do the individual calculations. The formulas are pretty simple. Just note it down. The FV of annuity ordinary
Ordinary annuity can also be called as the immediate annuity. That formula is I. I stands for the installment amount. Now, installment amount may be cash inflow, it may be cash outflow, whatever the case it may be. In bracket, 1 plus r raised to n minus 1 divided by r. R stands for the rate of return, n stands for the number of period. You multiply that with your individual investment amount, you will get the future value of entire annuity. अब जो एन्युटी ड्यू है ना, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा. सो FV ऑफ एन्युटी ड्यू, पहले तो जो सेम फॉर्मूला है ना वही लिख देते हैं, उसमें छोटा सा माइनर मॉडिफिकेशंस आएंगे, वो करेंगे. 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर. अब चेंजेस कहां पे करने हैं? मैंने आपको बताया कि हर एक पीरियड में आपको एक एक पीरियड का इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पे n+1 कर देना है, n+1. और यहाँ पे ये पूरा खत्म हो जाए ना, उसके बाद में यहाँ पे -1 करना है. लेट मी टेक दिस ब्रैकेट. ये ब्रैकेट को ना मैं इरेज कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़े. हाँ, यहाँ पे एंड में क्या करना है सर? -1 करना है. Now those people who have learned the business mathematics might have gone through some different formula, but I am following these two formulas because in the advanced calculations of business valuations, valuations of various securities and so many valuation of shares, this formula will be pretty much handy and very easy to use, you know, accessible kind of formulas. तो मैं इसको है ना, ये जो ब्रैकेट है उसको मैं क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग फैक्टर कहता हूँ. क्या कहता हूँ? क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग फैक्टर. देखेंगे धीरे धीरे आने वाले सम्स जैसे ही आएंगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी. तो ये जो आपको बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, उसको मैं कहता हूँ क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग फैक्टर. मतलब 5 साल की एन्युटी है तो 5 साल का टोटल क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग फैक्टर कितना है, तो तुम्हें इस वाले ब्रैकेट से मिलता है. उसको तुम मल्टीप्लाई करते हो अपने इंस्टॉलमेंट अमाउंट से, यू गेट द फ्यूचर वैल्यू. So that's it from my side as far as the future value explanation is concerned for annuity. From the next session, we will start solving the sums of it. But before that, I just need a confirmation from your side that you have got everything. यहाँ तक सब कुछ clear है बेटा? Yes, sir. Okay, thank you so much. चलो others, बाकी सब में भी yes sir आ रहा है. चलो very nice. Some people have started putting their enrollment number. ऐसा मन की बात कैसे तुम जान जाते हो भैया? मैं कोई मोदी जी तो हूं नहीं कि मेरी मन की बात करता हूं इधर. Anyway, put your enrollment number. That's it from my side for a day. Take care. Sayonara. Enjoy the rest of the day. See you all again in the next session. And happy Sir, Guru it's Purnima to all of you. with you. Yes, please. Why not? Yes, Anjali. What you were saying, I couldn't hear it properly. Sir, I told that it was fun learning with you. Oh, thank you so much, Miss Anjali. Thank you. Sir, Yes, please. could you please share the questions relating to this logarithm kind of, pattern? Definitely, I have many questions actually, but my always a pattern like, first I complete the module, because meanwhile, if I'll share some questions to you will get stuck in various varieties actually. Now let those varieties be covered in the classwork first of all, and then you should start solving it so that you won't get confused while practicing it. So once the module gets over, I distribute the classwork questions as well as some practice questions. This is what my pattern has been. But if you want it right now, I don't have any problem, but you will get little bit confused in that because many of the varieties might not even cover. सर बाद में भेजना. कर दूं मैं सेंड? तो मैं No, कर no, देता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कर दीजिए. Sir, if you could share only like 2 or 3 questions relating to this, logarithm kind of formula thing, so we would be familiar to it. ओके बेटा, देखो इसका स्नैप ले लो, ठीक है? मैं आपको दिखा रहा हूँ. 10%,
इन्वेस्टमेंट हो रहा है 10 लाख रुपए. आई एम जस्ट राइटिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. नंबर ऑफ इयर्स से 6. तो यहाँ पे बैठे बैठे अपने सम हो गए भैया. देखो 11% पे है दूसरे में, तीसरे में आ गया 15%. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50,000, इसमें है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000. इसमें है नंबर ऑफ इयर्स अपने 6, 7 और इधर है 9. और कंटिन्यू ये है हमारा रेट ऑफ रिटर्न. एंड द कंपाउंडिंग इज कंटिन्यूअस इन नेचर. Sir, can you show that solve the sum of this logarithm? ओके, इसका स्नैप ले लेना बेटा, ठीक है. मैं जिन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा है, ये 3 सॉल्व करके दो मुझे. हर एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है ये तीनों में. ये आप मुझे सोल्व करके दीजिए. तो आपका 3 प्रैक्टिस का क्वेश्चन हो गए. प्लीज टेक अ स्नैप ऑफ दिस. Yes, sir. Done. Thank you. ओके सर, आप तो इधर खड़े खड़े क्वेश्चंस बनाते हो. तो आ गई है अब, इतनी फावट आ गई है यू नो मुझे. ओके, किसी बच्चे को मुझे चाहिए था उनको कि लॉगरिथम के सर बताओ कि क्या आपने सॉल्व किया है. अब यहाँ पे एक्सेल फाइल में किधर सॉल्व किया वो देखना पड़ेगा. रुको 1 मिनट. नहीं, एन्युटी में नहीं, वो कैश सिंगल प्लेस फॉर्म में था, इधर था. दिख रहा है बेटा स्क्रीन? जिनको स्नैप लेना था वो लॉग वाले क्वेश्चन का, तो ले लीजिए. अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ. टेक अ स्नैप ऑफ दिस. क्लियर? हु सेड मी अबाउट दिस? Sir, I told. हाँ, ये जो आपने स्नैप जो ले लिया लीजिए. है 2.718 वो तो सब में सेम ही होगा, राइट? हाँ, ई जब आएगा ना, ई अपने ई, उसमें सब में सेम ही होगा. ई मतलब कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर, उसका वैल्यू 2.7180 है. ओके, सो मींस अभी जो आपने सम दिए हैं उसमें सब में भी यही एक्सपोनेंशियल यही लेना है ना? हाँ, उसमें सभी में, क्योंकि वो हर जगह पे कंटिन्यूअस कंपाउंड है. तो जहां जहां पे भी कंटिन्यूअस कंपाउंड है ना, वहां पे मॉडिफाई हो जाता है. F equals to P multiplied by E raised to RT. That becomes a formula whenever there is continuous compounding. ओके सर, And we have systematically mathematically derived to n. We have done the derivation of it. बेटा. और E का हमने वैल्यू निकाला 2.78. यस सर, क्लियर, थैंक यू. ओके, ठीक है. कुछ ना समझ आए तो कभी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. Okay, some people are yet to put their attendance. Please put it as quickly as possible. Some are waiting for me to remove them. Happy Guru Purnima. Happy Guru Purnima to all guys. Happy Guru Purnima. Take care. Enjoy your rest of the day. Oh, thank you so much, Jill.